Hello pupils, today we shall take one of the poem of your English syllabus named Amanda, composed by Robin Klein. In this poem, Robin Klein has expressed the views of a little girl named Amanda. Amanda is constantly for making mistakes pointed out by her mother. Amanda considers the mistakes as they are not part of the good behavior or code of good conduct. So, in this poem, every child feels that she or he is controlled and instructed not to do one thing or another. You too may feel that your freedom is curtailed. Write down some of the things you want to do, but your parents, your elders do not allow you to. As Robin Klein is just demanding from your side to write down some activities you want to do, but your elders, your parents do not allow you to. To read the poem aloud, form pairs, each reading alternate stanzas. You are in for a surprise. As first of all, you have to keep in mind that the following stanzas means one stanza after the others, after the first stanza, you will get the thinking of Amanda. The first stanza just expresses the views of her mother, and the following stanza is the thinking, is the imagination of Amanda. So, first of all, we read the poem. Don't bite your nails, Amanda. Don't hunch your shoulders, Amanda. Stop that slouching and sit up straight, Amanda. There is a languid, as you are seeing that the second stanza is in brackets. It means this stanza is just for Amanda's imagination. There is a languid emerald sea where the sole inhabitant is me, a mermaid drifting blissfully. Did you finish your homework, Amanda? Did you tidy your room, Amanda? I thought I told you to clean your shoes, Amanda. I am an orphan roaming the street. I pattern soft dust with my hushed bare feet. The silence is golden, the freedom is sweet. Don't eat that chocolate, Amanda. Remember your acne, Amanda. Will you please look at me when I am speaking to you, Amanda? I am Rapunzel. I have not a care. Life in a tower is tranquil and rare. I will certainly never let down my bright hair. Stop that sulking at once, Amanda. You are always so moody, Amanda. Anyone would think that I nagged at you, Amanda. By Robin Klein. So, in this poem, Robin Klein is just describing a girl, a little girl named Amanda. है ना, जैसे अमांडा एक ऐसी छोटी लड़की है जो हमेशा अपनी गलतियों के लिए अपनी माँ से डांट खाती है और इमेजिन करती है ना, कल्पना करती है कि उसका जीवन कैसा हो। जैसे वो एक्सपेक्ट करती है कि काश ऐसा होता मेरी लाइफ में, काश वैसा होता मेरी लाइफ में। तो रॉबिन क्लेन जो कंपोज़र हैं इस पोएम की, वो बताती हैं कि मदर अमांडा को जो है पॉइंट आउट कर रही है। जो फर्स्ट स्टैंजा है उसमें जैसे उसकी एक बैड हैबिट है, उस बैड हैबिट के लिए वो उसको पॉइंट आउट कर रही हैं, है ना। और वो बैड हैबिट क्या है, इसमें जैसा दिया है ना, डोंट बाइट योर नेल्स अमांडा। तो उसकी बैड हैबिट क्या है कि वो अपने दांतों से, अपने टीथ से जो है अपने नेल्स बाइट करती रहती है। नेल बाइटिंग उसकी एक बैड हैबिट है ना। तो नेक्स्ट उसको जो है उसके लिए वो जैसे ना पॉइंट आउट कर रही हैं, उसको स्कोल्ड कर रही हैं कि ये क्या करती रहती हो, हमेशा जो है दांतों से नाखूनों को चबाती रहती हो, है ना। फिर नेक्स्ट लाइन में मदर जो है वो अमांडा को सीधे बैठने के लिए इंस्ट्रक्ट कर रही है कि डोंट हंच योर शोल्डर्स अमांडा, है ना, कि वो उसको जैसे कि कंधे जो है वो लूज़ करके मत बैठो, है ना, कैजुअली मत बैठो। इंस्ट्रक्ट करती है कि अमांडा अपने शोल्डर्स को बेंड ना करे, है ना। वो बताती हैं कि जो है और एकदम सही पोस्चर में, है ना, एक स्ट्रेट जो है वो बैठने का जो एक प्रॉपर मैनर होता है उसमें बैठे। क्यों? क्योंकि अमांडा को जो है कंधे झुकाकर बैठना और कैजुअली जो है लेज़िली बैठने की आदत है, ये उसकी हैबिट है ना। तो वो माँ को अच्छी नहीं लगती है, इसलिए माँ चाहती है कि इस बैड हैबिट को वो इम्प्रूव करे और जो सही पोस्चर है बैठने का, जो सही मैनर है बैठने का, उसको सीखे।
जब माँ अमांडा को डांट रही है उसी समय अमांडा अपने आप को एक गहरे और हरे समुद्र में रहने की कल्पना करती है ना, वो इमेजिन करती है। जैसे सेकंड स्टेंजा हमने बताया ना कि वो अमांडा की इमेजिनेशन है। सेकंड स्टेंजा जो है वो फॉलो कर रहा है कि जिस समय मदर जो है वो उसको सही मैनर्स सिखाने की कोशिश कर रही हैं, डांट रही हैं, उसी समय वो अपने दिमाग में क्या इमेजिन कर रही है उसको जो है वो फॉलो करता है आपका सेकंड स्टेंजा। तो जिस समय वो उसको डांट रही हैं उसी समय अमांडा जो है वो अपने आप को एक डीप और ग्रीन सी में जो है इमेजिन कर रही है कि वो चाहती है कि उस गहरे और हरे समुद्र में केवल वही रहे, है ना, कि वो अपने आप को इमेजिन कर रही है कि मैं इस समय काश कि एक जो है वो गहरे से और एकदम ग्रीन जो है वो सी में होती, एमरल्ड सी में होती, है ना, जहाँ की और कोई ना होता, यानी सिर्फ मैं ही जो है वो वहाँ पर रहती। और इस समय जो है अमांडा अपने आप को एक जैसे इसमें दिया ना मर्मेड, यानी जल परी के रूप में जो है अपने आप को इमेजिन कर रही है ना, कि मैं एक जलपरी हूँ और उस समुद्र में हूँ, एक एमरल्ड सी है, एकदम डीप है और उसमें जो है सिर्फ मैं हूँ, मैं ही वहाँ रहती हूँ, वो मेरा ही समुद्र है और मेरे सिवा वहाँ कोई नहीं है ना। तो वो उस जीवन को बहुत मज़ेदार जीवन मानती है कि काश मेरी लाइफ ऐसी होती, है ना, कि कितना अच्छा रहता कि जो है मैं ऐसी जगह पर अकेले और जो है बहुत सुकून से रहती। तो अमांडा क्या चाहती है कि जो पानी का बहाव है ना, फिर वो आगे की लाइंस में ये चाहती है कि जो पानी का फ्लो है ना, वाटर फ्लो है, वो उसे बहाकर, जो करंट है पानी का वो उसे बहाता हुआ दूर तक लेकर जाए और उसे बहुत रिलैक्स फील हो, है ना, कि इस तरह की फीलिंग को जो है वो बहुत ज़्यादा एन्जॉय करना चाहती है। नाउ लेट्स मूव टू दी नेक्स्ट स्टेंजा। डिड यू फिनिश योर होमवर्क अमांडा, है ना। अब वो जो है इस स्टेंजा में जो है रॉबिन क्लेन कहती हैं कि जो अमांडा की मदर है वो अमांडा को उसके होमवर्क कंप्लीशन के बारे में पूछ रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क जो है वो फिनिश कर लिया, है ना, या नहीं किया। फिर वो उससे पूछती हैं कि जैसे पहले उससे उसके होमवर्क के बारे में पूछती हैं, फिर उसके बाद उसके उन्होंने जैसे उससे पूछा कि जो एक गुड मैनर होता है कि आप जब सो के उठें या जो है कमरे से बाहर आएँ तो आपका कमरा जो है वो नीट एंड क्लीन होना चाहिए, है ना। तो वो उससे पूछती हैं कि क्या उसने अपना कमरा साफ़ कर लिया है या नहीं किया है ना। तो अमांडा की मदर जो है फिर उसको थर्ड लाइन में जो है वो रियलाइज़ कराती हैं, उसको याद दिलाती हैं कि उन्होंने जो है उसको शूज़ भी क्लीन करने के लिए कहा था, तो क्या उसने उसको शूज़ क्लीन कर लिए हैं, है ना। और जब ये चीज़ें वो उसको जो है बता रही हैं, यानी जो अमांडा की मदर हैं, जब उसको रियलाइज़ करा रही हैं कि क्या तुमने अपना होमवर्क कर लिया, क्या तुमने जो है वो रूम क्लीन कर लिया, नीट एंड क्लीन कर लिया, है ना, या तुमने अपने शूज़ जो है वो क्लीन कर लिए, जब वो ये सब क्वेश्चंस कर रही हैं तो उसी समय जब इन क्वेश्चंस को वो फोर्सफुली अमांडा से पूछ रही हैं, उसी समय अमांडा अपनी ही धुन में, अपनी ही जो है वो इमेजिनेशन में खो जाती है और वो क्या एक्सपेक्ट करने लगती है, क्या जो है वो थॉट उसके मन में आते हैं कि आई एम एन ऑर्फन रोमिंग द स्ट्रीट। काश, है ना, वो सोचने लगती है कि अमांडा अपने आप को एक अनाथ होने की कल्पना करने लगती है ना, कि मैं एक काश मैं एक ऑर्फन होती, है ना। तो वो अपने आप को एक ऑर्फन जैसे ये इमेजिन करती है कि काश मैं ऑर्फन होती तो जो है मुझ पे किसी का जो है वो बाउंड नहीं होता, कोई मेरे ऊपर कंट्रोल नहीं होता, मैं फ्री होती और जो है कोई मुझे रोक टोक नहीं होती, मैं गलियों में घूमती, है ना, फ्रीडम होता मेरे पास। तो इट मीन्स कि वो इमेजिन कर रही है कि अगर वो पेरेंट लेस होती, है ना, यहाँ पे मीनिंग यही आती है कि अगर वो पेरेंट लेस होती तो कितने मज़े से, है ना, एकदम आज़ाद स्वतंत्र गलियों में घूमती, वो अपने नंगे पैरों से जो जैसे गली की धूल होती, है ना, क्योंकि जैसे वो ऑर्फन अपने आप को जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है, इमेजिन कर रही है, तो वो सोचती कि हाँ जैसे मेरे पैर नंगे होते, मैंने जो है वो स्लीपर्स वगैरह नहीं पहने होते और जो गली की धूल होती, है ना, उस धूल से मैं अपने नंगे पैरों से जो है अलग अलग डिज़ाइन बनाती, है ना, उसमें जैसे मुझे कोई रोकता नहीं वो करने से। अब यहाँ अमांडा की इमेजिनेशन उसे अपनी माँ की थिंकिंग के अपोजिट ले जाती है ना, जो जैसे वो उसको जो है वो बिहेवियर सिखाना चाह रही हैं, गुड बिहेवियर सिखाना चाह रही हैं, वहीं जो है वो उसके अपोजिट सोच रही है कि जहाँ माँ उसे जो है वो सिस्टमेटिक और नीट एंड क्लीन रहने के लिए कह रही है, वहीं अमांडा जो है वो धूल में खेलने के बारे में सोच रही है। तो अमांडा अपनी माँ से इतनी परेशान है
कि माँ उसे हमेशा इंस्ट्रक्ट करती रहती है ना। इससे तो अच्छा जो है वो साइलेंस को मानती है। उसे लगता है कि इससे बेटर तो साइलेंस है, कि कोई जो है ज़्यादा बोले ना, है ना, कोई कुछ कहे ना, इससे अच्छा कि मैं अकेले रहूँ, है ना। तो अमांडा कहती है कि साइलेंस इज़ गोल्डन, इट इज़ वेरी वैल्यूएबल। अब जैसे द साइलेंस इज़ गोल्डन, द फ्रीडम इज़ स्वीट, तो वो ये मानती है कि साइलेंस जो है वो बहुत वैल्यूएबल है, साइलेंस अच्छी चीज़ है ना, और इट इज़ वेरी वैल्यूएबल एंड रिलैक्सेबल एज वेल। और वो बोलती है कि जैसे कोई अगर रोके टोके नहीं, है ना, तो साइलेंस जो है वो बहुत अच्छी चीज़ होती है। फिर आगे जो है अमांडा फ्रीडम को स्वीट बताती है ना, कि उसका कहना है कि फ्रीडम जो है वो स्वीट है। क्यों? क्योंकि अपनी माँ के साथ वो अपने आप को कभी फ्री नहीं पाती है ना। वो जैसे फ्रीडम फील नहीं करती है, मीन्स वो अपने आप को बाउंडेशन में नहीं चाहती, वो चाहती है कि मैं स्वतंत्र रहूं, मुझे जो है हमेशा इस तरह से डांटा फटकारा ना जाए, छोटी छोटी चीज़ों के लिए पॉइंट आउट ना किया जाए। तो वो एक ऐसी लाइफ जो है वो जीना चाहती है। अब नेक्स्ट स्टैंजा में अमांडा की मदर उसे चॉकलेट खाने से मना करती है, कि जो नेक्स्ट स्टैंजा है उसमें जैसे डोंट ईट दैट चॉकलेट अमांडा, तो उसे जैसे चॉकलेट खाने से मना करती हैं और उसे उन पिंपल्स की याद दिलाती हैं जो चॉकलेट खाने से हो जाते हैं, है ना, वो कि जैसे ज़्यादा चॉकलेट खाओगी तो तुम्हें पिंपल्स हो जाएंगे, है ना, चेहरे पे जो है वो जो छोटे छोटे फुंसियाँ हो जाती हैं वो पिंपल्स कहलाते हैं ना। तो वो उनकी याद दिलाती हैं। तो मदर उस समय और एग्रेसिव हो जाती हैं जब उन्हें ये लगता है कि जो बातें वो अमांडा को बताना चाह रही हैं उन बातों को अमांडा मन से नहीं सुन रही है, ध्यान से नहीं सुन रही है ना। तो वो जैसे और ज़्यादा जो है वो गुस्से में आ जाती हैं कि क्या मैं जो कह रही हूँ उसको तुम सुन रही हो। इसके लिए मदर उसे ज़ोर से डांट लगाती हैं, है ना, उसे और तेज़ डांटती हैं कि क्या जो मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ तुम उसे सुन रही हो, है ना, तुम्हारा ध्यान किधर है ना, मैं क्या कह रही हूँ, मेरी तरफ देखो, मैं तुमसे बात कर रही हूँ। तो अमांडा इस पर जैसे अपने आप को रेपुंजेल होने की कल्पना करती है ना। अब एक क्वेश्चन आता है कि हु इज़ रेपुंजेल, है ना, ये क्वेश्चन। अब वो अपने आप को जो है रेपुंजेल होने की कल्पना करती है, इमेजिन करती है कि काश मैं रेपुंजेल होती। अब रेपुंजेल कौन? रेपुंजेल एक फेयरी टेल का कैरेक्टर है ना, वो भी एक लड़की है। तो जैसे वो एक कैरेक्टर है फेयरी टेल का, जिसको जो है एक बिच ने, एक जो है वो चुड़ैल ने उसको जो है क्या किया होता है कि कैद कर रखा होता है एक टावर में, है ना, एक बड़ा सा टावर होता है, उसमें जो है उस चुड़ैल ने उसको कैद करके रखा होता है ना। और जब उसको कैद करके रखते हैं और जिस रूम में वो रहती थी रेपुंजेल, उस रूम की खिड़की से, वो उस रूम की खिड़की से जो है अपने बड़े बालों को, जैसे ये माना जाता है कि उसके जो हेयर थे वो बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग थे, तो जैसे लॉन्ग हेयर जो थे उनको अपनी जो विंडो थी जिस रूम में उसको कैद किया गया था उसकी विंडो से जो है वो सुखाने के लिए नीचे गिरा देती थी ताकि बाल जो है वो सूख जाएं। तो जो बिच थी, जो चुड़ैल थी, वो उन्हीं बड़े बालों को पकड़ के, है ना, ऐसा कहा जाता है, फेयरी टेल की एक स्टोरी है ये, कि उन्हीं बालों को पकड़ के वो चुड़ैल जो है वो टावर के ऊपर चढ़ा उतरा करती थी, है ना। तो उसे लगता है कि टावर की लाइफ, अब अमांडा जो है, यानी ये कैरेक्टर था ये जो रेपुंजेल का, तो अमांडा अपने अपने आप को रेपुंजेल की जगह पे, यानी रेपुंजेल जो है वो एक्सपेक्ट कर रही है कि काश मैं, वो इमेजिन करती है कि काश मैं रेपुंजेल होती। तो जैसे ये जो लाइफ मैं जी रही हूँ जहाँ पे जो है मम्मी हमेशा मुझे पॉइंट आउट करती रहती हैं, स्कोल्ड करती रहती हैं, इससे अच्छी लाइफ तो जो है वो टावर वाली लाइफ है, कि जिसमें रेपुंजेल को उस चुड़ैल ने जो है वो कैद करके रखा था, वो लाइफ बड़ी अच्छी थी फिर तो, है ना। तो वो टावर में ज़्यादा मज़े से रह सकती थी, ऐसा वो इमेजिन करती है कि टावर की लाइफ जो है वो कहीं ज़्यादा अच्छी थी। तो अमांडा जैसे खुद से ये कमिटमेंट भी करती है कि अगर ऐसा हो जाता, काश कि मैं जो है वो टावर में मुझे भी कैद कर दिया जाता है, मैं वहाँ जाके रहती, अकेले रहती, जैसे साइलेंस को वो गोल्डन बता रही थी ना अभी पिछले स्टैंजाज में, तो वो मानती है कि वो लाइफ अच्छी थी, है ना। और फिर लेकिन जो है ये एक्सपेक्ट करते करते, ये इमेजिन करते करते वो एक कमिटमेंट भी करती है अपने आप से कि अगर ऐसा होता कि मैं रेपुंजेल होती तो मैं अपने बालों को, जिस तरह से रेपुंजेल खिड़की से अपने बालों को गिराती थी और चुड़ैल जो है उससे ऊपर नीचे चढ़ा उतरा करती थी टावर पे, तो मैं ऐसा नहीं करती, मैं अपने बाल जो है वो खिड़की से नीचे नहीं गिराती। क्यों? क्योंकि अगर मैं भी गिरा देती बालों को नीचे तो कोई ना कोई जो है वो बालों के सहारे टावर पे चढ़ जाता। तो मैं नहीं चाहती
कि कोई जो है और वहाँ पर आता, मैं तो साइलेंस में रहना चाहती थी ना। तो वो कहती है कि वो बालों को नहीं गिराएगी जिससे कि कोई भी टावर के ऊपर ना आ सके, है ना। अब नेक्स्ट में जो है, जो नेक्स्ट स्टैंजा है, नाउ हर मदर वॉर्न्स हर फॉर हर नेगेटिव बिहेवियर, है ना। अब उसकी जो माँ है ना, अमांडा की जो मदर है, वो उसको उसके नेगेटिव बिहेवियर पे जो है वो डांटती हैं कि मदर उसे जैसे कि छोटी छोटी बात पे वो अपना मूड चेंज कर लेती है, मुंह लटका लेती है, मुंह फुला लेती है, गुस्से में आ जाती है, नाराज़ हो जाती है ना। तो वो कहती हैं कि ये बिहेवियर ठीक नहीं है, तुम्हें इस तरह से नहीं रहना चाहिए, तुम्हें अपने थोड़ा सा बिहेवियर में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। और कहती हैं कि तुम 2-2 मिनट में जो मूड चेंज कर लेती हो ना, ये अच्छी बात नहीं है ना। तुम्हारा बिहेवियर देखकर क्या होगा कि एक दिन लोग कहेंगे कि मैं तुम्हें बहुत परेशान करती हूँ, है ना। तो अमांडा की जो मदर है वो उसको बार बार बताती हैं कि तुम्हारा इस तरह का जो रिएक्शन है उससे लोगों को लगेगा कि मैं तुम्हें परेशान करती हूँ, मैं तुम्हें हरास करती हूँ, है ना। जबकि ऐसा है नहीं, मैं तुम्हें गुड बिहेवियर सिखाना चाहती हूँ, गुड मैनर्स सिखाना चाहती हूँ। अब क्योंकि जैसे जब अमांडा की मदर जो है उसे स्कोल्ड करती हैं तो उस पर वो चुपचाप बस खड़ी हो जाती है, मुंह बंद करके, आंखें झुका के, उस पर कोई रिएक्शन नहीं देती है ना। अब अगर वो उससे कहती हैं कि अगर तुम रोने लगोगी, कोई तुम्हारा रोना सुनेगा तो सोचेगा कि अरे ये तो रोज़ रोती है, रोज़ डांट पड़ती है इसको, है ना, ये अच्छा नहीं है। तो फिर जो है अमांडा जो है उसके बिहेवियर पर जो रिएक्ट नहीं करती है, वो उस पर पॉइंट आउट करती हैं कि अगर तुम रोने लगोगी तो लगेगा कि जो है मदर जो है वो हमेशा हरास करती है ना। तो तुम इस तरह का बिहेवियर जो है वो चेंज करो। जैसे लास्ट की जो 4 लाइन्स हैं, स्टॉप दैट सल्किंग एट वंस अमांडा, यू आर ऑलवेज मूडी अमांडा, एनीवन वुड थिंक दैट आई नैग्ड एट यू अमांडा, है ना, कि किसी को हमेशा लगेगा कि मैं तुम्हें जो है हमेशा हरास करती रहती हूँ। तो ये बेसिकली एक पोएम जो है वो किसी की भी इंडिविजुअल लाइफ से कोरिलेट करके जो है वो समझी जा सकती है कि जैसे अगर आप अपने ऊपर ही लेकर देखिए इसको, तो जैसे पेरेंट्स हुए, एल्डर्स हुए, वो आपको किसी न किसी चीज़ के लिए, चाहे ये इस काम के लिए चाहे उस काम के लिए, कहीं ना कहीं आपको पॉइंट आउट करते हैं, है ना, रोकने की कोशिश करते हैं कि ये मत करो, ये करो, ऐसे मत करो, ऐसे करो। तो ये भले ही आपको बुरा लगता होगा, है ना, लेकिन आपको लगता होगा कि अरे फ्रीडम नहीं है, हमें जो है वो अच्छे से जीने नहीं दे रहे हैं, हमेशा जो है रोक टोक रहती है। लेकिन जो पर्पज़ होता है पेरेंट्स का, आपके एल्डर्स का, वो आपको सही तरीका सिखाने का होता है। जो मेन फैक्टर इसमें रोल प्ले करता है वो आपको गुड बिहेवियर, गुड मैनर्स सिखाने का होता है। उनका पर्पज़ कहीं भी आपको हरास करने का नहीं होता। इसलिए बेटा, इसको जो भी आपको कोई आपका बड़ा सिखाता है उसको आप पॉजिटिवली लीजिए, है ना। जिस तरह से अमांडा इस पोएम में बिहेव कर रही है कि वो इमेजिन करती है कि ये लाइफ ऐसी होनी चाहिए, वैसी होनी चाहिए, नहीं, तो जैसे उसकी मदर जो है वो उसकी दुश्मन थोड़ी है। उसकी मदर वो चाहती है ना कि अमांडा के पास गुड बिहेवियर आ जाए, गुड मैनर्स रहें इसके पास, है ना। और जैसे होता है ना कि लाइफ में एक स्टेप ऐसा आता है जब आप खुद फील करते हैं कि आपके पेरेंट्स जिन बातों के लिए आपको डांटते थे उनसे आप में कितना इम्प्रूवमेंट हुआ, उसमें कितना सुधार हुआ। तो होप यू अंडरस्टैंड द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस पोएम वेल। सो थैंक यू।